Hello students, I am Dr. Lalita from Hari Science and Maths Academy. As we are discussing the chapter transportation in plants and animals, yesterday we covered the topic transportation in animals, but in human circulatory system the main organ that is heart is left. So today we are going to discuss about the heart. Now the heart. Detailed description of heart picture is shown on the right hand side of the board. Heart is a muscular organ that pumps the blood from heart to all parts of the body. Okay, which pumps blood to all parts of the body. Now on the right hand side you clearly see that human heart is a 4-chambered heart. 2 chambers are upper chambers and 2 are the lower chambers. The upper chambers are marked with right atria and left atria. The singular form of atria is known as atrium. Upper chamber is known as atria and lower chambers are known as ventricles. Now, upper chamber name is atria and the lower chambers are called as ventricles. And these 2 chambers are left and right. So, the left part of the upper chamber is known as left atrium and the right upper chamber is known as right atrium. Similarly, left lower chamber is known as left ventricle and the right lower chamber is known as right ventricle. Next, we are going to discuss the different veins and the arteries that are coming to the heart or that are going away from the heart. The first one, that is the main artery, is aorta. Aorta is the main artery of the heart and it carries the oxygenated blood. 3 valves on the upper top of the heart in the heart structure is shown. Next is pulmonary artery, only artery that carries the deoxygenated blood, and it carries the blood from heart to lungs. In this heart there is a carbon dioxide. Now the next is vena cava. Vena cava is the main vein. Like aorta is the main artery, similar case vena cava is the main vein that carries the deoxygenated blood. This vena cava main vein is divided into further 2 parts, that is superior vena cava and inferior vena cava. Superior means it carries the blood, deoxygenated blood. Vena cava is a vein, so it carries the deoxygenated blood. It carries the deoxygenated blood from the upper part of the body to the heart. Body के upper part में से, upper part जो है body का, वहां से ये deoxygenated blood को लेकर के आती है heart तक. Similarly, like inferior vena cava बॉडी के लोअर पार्ट से deoxygenated blood को हार्ट तक लेकर के. Now the next is the pulmonary vein. It is the only vein that carries the oxygenated blood. Oxygenated blood it carries from lungs to the heart. ठीक है. अब देखो पल्मोनरी आर्टरी जो है वो हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है. कहां से? हार्ट से लेके जाती है लंग्स में. लंग्स में गैस का एक्सचेंज जो है वो होता है and after the gaseous exchange that oxygenated blood is coming to heart from the lungs through this pulmonary vein, and these all aorta, pulmonary artery, vena cava. Vena cava में भी स्ट्रक्चर के अंदर बिल्कुल क्लियरली मार्क है कि सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा. नाउ लास्ट वन इज द पल्मोनरी वेन. ठीक है, ये सारी आर्टरीज और वेन्स जो हैं ये मतलब हार्ट से डायरेक्टली जो है दैट दे आर कंबाइंड. नाउ इन द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ दिस ब्लड फ्लो हैपेंस. ब्लड कॉन्टिन्यूअसली फ्लोज इन इनसाइड द बॉडी. ठीक है, ऐसा नहीं है कि ब्लड जो है वो अभी फ्लो कर रहा है थोड़ी देर के बाद रुक जाएगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी. एज अवर हार्ट इज कॉन्टिन्यूअसली पंपिंग द ब्लड, सो ब्लड कॉन्टिन्यूअसली फ्लोज इन द बॉडी. नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन दैट आर पॉसिबल, दैट आर हैपनिंग इन अवर बॉडी. दे आर पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमैटिक फ्लो. Pulmonary circulation happens from heart to lungs. Heart to lungs happen होता है and from lungs to heart only. In pulmonary circulation, the blood flows from heart to lungs and lungs to heart. In case of systematic flow, blood flows from heart to body organs and from body organs to heart. There are 2 types of circulation.
फर्स्ट वन इज द पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सेकेंड वन इज द सिस्टमेटिक फ्लो। पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्लड जो है वो सिर्फ हार्ट से लंग्स तक जाएगा और लंग्स से हार्ट तक आएगा। इन केस ऑफ सिस्टमेटिक, blood flows from heart to body organs and from body organs to heart. Now we are going to discuss how this circulation is happening in our body. पहले मैं मार्किंग एक्सप्लेन करती हूँ। जो ब्लू कलर की मार्किंग है वो शो कर रही है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और जो रेड कलर की मार्किंग है वो शो कर रही है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। नाउ फ्रॉम द बॉडी के हर एक सेल से वेना केवा के थ्रू, और जो रेड कलर की मार्किंग है वो शो कर रही है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नाउ फ्रॉम द बॉडी के हर एक सेल से वेना केवा के थ्रू ब्लड रिसीव होता है राइट एट्रियम में। कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखो सेल्स जो हैं वो अपना अपना फंक्शन कर रहे हैं। जब वो फंक्शन करते हैं तो वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के थ्रू जो है वो कैरी होती है दिस वेना केवा से राइट आर्टरी में। फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ बॉडी से हार्ट तक वो ब्लड जो है वो लेकर के आती है सुपीरियर वेना केवा, एंड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, लोअर पार्ट से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आता है वो आता है इंफीरियर वेना केवा के थ्रू। आप देखोगे दोनों वेना केवास की ओपनिंग जो है, इंफीरियर वेना केवा की और सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग, दोनों की ओपनिंग है राइट आर्टरियम में। अब राइट आर्टरियम से ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पास होता है राइट वेंट्रिकल में, और ये पास होता है थ्रू वॉल्व्स। There are two valves that are present between the right atrium and right ventricle. If you see clearly in this picture, right hand side वाली पिक्चर में, ठीक है, उसके नाम भी वहां मेंशन है। The two valves are that are marked between, that are present between right atrium and right ventricle are tricuspid valve and pulmonary valve. अब right ventricle से ये ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू पल्मोनरी आर्टरी जो है वो पास होता है लंग्स तक। अब लंग्स में ये गैसियस एक्सचेंज जो है वो टेक प्लेस होता है। मींस जो कार्बन डाइऑक्साइड आई है ब्लड के थ्रू वो एक्सचेंज होगी ऑक्सीजन के साथ, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो पल्मोनरी वेन के थ्रू एंटर करेगा लेफ्ट आर्टरियम के अंदर। अब लेफ्ट आर्टरियम से वो ब्लड जो है वो पास होगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, और यहां पर भी हमारी दो वाल्व्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं जो मार्क की गई हैं, मिट्रल वाल्व एंड आयोटिक वाल्व। ठीक है, यहाँ पे भी दो वाल्व्स प्रेजेंट है। अब इन वाल्व्स का देखो, दो वाल्व्स हमारी राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट थी, दो वाल्व्स जो है वो लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है। अब इन वाल्व का फंक्शन क्या होता है? इन वाल्व का फंक्शन ये है कि ये बैकवर्ड फ्लो जो है ब्लड का वो नहीं होने देता, जिसकी वजह से ब्लड अगर एक बार राइट वेंट्रिकल में एंटर कर गया तो वो वापस राइट आर्टरियम में नहीं जा सकता। सिमिलरली लेफ्ट वेंट्रिकल में अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर कर गया तो वो लेफ्ट आर्टरियम में नहीं जा सकता। वॉल्व से वो पास हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल में, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल का अगर आप देखोगे तो लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू वो आउटा वाल्व से सारी बॉडी के अंदर ट्रांसफर होता है। आउटा वाल्व की आप ओपनिंग देखो उस पिक्चर के अंदर, वो क्लियरली शो है कि वो आपकी लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर है, और उसके बाद अपर पोर्शन में अभी आपको क्या है, तीन ब्लड वेसल्स जो है वो दिखाई दे रही है, बिकॉज दिस इज द मेन आर्टरी विच कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड and supplied to each and every part of the body. ये जो outer artery है ये हमारी फर्दर क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है इनटू कैपिलरीज। कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएगी, और ये कैपिलरीज जो हैं वो अपने साथ ब्लड के साथ जो है, ये आर्टरीज जो हैं वो अपने साथ क्या कैरी करती हैं? ऑक्सीजन कैरी करती हैं, न्यूट्रिएंट्स कैरी करती हैं, एंड गैसेस को कैरी करती हैं। ठीक है, अब वहां से ये बॉडी के हर एक सेल तक जो है वो पहुंचता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वहां पर एक्सचेंज, वहां पर फिर से क्या होता है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेल्स को सप्लाई करती हैं। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये सारी चीजें, वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस जो हैं ये सप्लाई करता है बॉडी के हर एक सेल को, और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करता है और वो उसको वापस कहां तक पहुंचाता है? हार्ट तक पहुंचाता है। दिस इज हाउ द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस इन द होल बॉडी। होल बॉडी में इस तरीके से सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो है वो टेक प्लेस होता है। इन दिस वे ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस, ठीक है, बिफोर कंप्लीटिंग वन सर्कुलेशन इन होल बॉडी। ब्लड का एक
सर्कुलेशन पूरी बॉडी में कंप्लीट होने तक हार्ट में वो ब्लड फ्लो जो है वो 2 बार हो जाता है. दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस ऑफ दिस सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज नोन एज डबल सर्कुलेशन. इसको क्या कहा जाता है? डबल सर्कुलेशन कहा जाता है. नेक्स्ट टॉपिक इज पल्स. Pulse is basically your heart rate. Heart rate means number of time the heart is beating per minute in 1 minute, that is the pulse. Pulse is lower during the rest position and it increases when you exercise. Lower pulse rate indicates more efficient heart functioning. Now, the pulse is not felt everywhere, it feels only at certain places in your body. The main places where you feel your pulses or heartbeat is near wrist, neck, ankle, etc. The normal heart rate for the adults is 60 to 100 beats per minute. Therefore, beats per minute is in the short form is written as BPM. If we talk about in the early age groups, the age from 0 to 1 month, resting heartbeat or resting heart rate is 70 to 190 BPM. For 1 to 11 month baby, the resting heart rate is 80 to 160 BPM. For 1 to 2 years, the resting heart rate is 80 to 130 BPM. For 3 to 4 years child, the resting heart rate is 80 to 120 BPM. For 5 to 6 years, the resting heart rate is 75 to 115 BPM. 7 to 9 years child, 70 to 110 BPM. And above 10 years, it is 60 to 100 BPM. This is about the pulse. Now, the next is, what are the disorders related to the circulatory system? The first one is hypertension. Hypertension is basically the state of high blood pressure. Second is heart attack. In the heart attack, when enough blood does not reach the heart, that is due to the basically the your veins or arteries get blocked. In that particular case, the blood is not enough, the enough blood is not able to reach the heart. In that case, heart muscles will get damaged and it affects the proper functioning of the heart. Now, the third disorder is heart failure. In that case, heart is not able to pump the enough blood according to the requirement of the body. देखो दोनों में क्या डिफरेंस है? हार्ट अटैक के केस में ब्लड जो है वो मतलब प्रॉपर अमाउंट जितनी हार्ट को पंप करने के लिए ब्लड को चाहिए होती है उतनी अमाउंट जो है वो हार्ट तक नहीं पहुंच पाती. दैट इज द केस ऑफ हार्ट अटैक एंड दिस इज ड्यू टू द ब्लॉकेज इन वेन्स. ठीक है, उसकी वजह से, ब्लॉकेज की वजह से ये हैपन होता है जिसमें हार्ट जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता. हार्ट फेलियर के केस में क्या है कि हार्ट जो है वो क्या है, आपका इनफ ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो जनरेट नहीं कर पा रहा, उसको पंप नहीं कर पा रहा कि आपकी बॉडी की जो ब्लड, बॉडी सेल्स की जो ब्लड रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो. दैट इज द हार्ट फेलियर. कार्डियक अरेस्ट इज बेसिकली द हार्ट स्टॉप्स फंक्शनिंग. हार्ट जो है वो सडनली फंक्शन करना स्टॉप कर दे, या फंक्शन मतलब ब्लड की पंपिंग को स्टॉप कर दे अचानक से. दैट इज द कार्डियक अरेस्ट. दिस इज द लाइटर, बिल्कुल स्लाइटर डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री टर्म्स: हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर एंड कार्डियक अरेस्ट. These three are different disorders. This is all about the chapter transportation in plants and animals. Still, if you have any query in this chapter, please post your query in the comment box. Please like, share and subscribe the channel for the video notification. Thank you.